हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 9th क्लास के बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट जो है वो साइंस है और टॉपिक हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। जैसा कि हमने इन आवर अर्लियर चैप्टर वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज। Natural means provided by nature and resources means the useful thing which the organism can make use of them, means those are known as natural resources. Natural resources are the sources provided by the nature for survival and the use of living organism. जो भी जिंदा चीज़ें हैं वो नेचर की दी हुई चीज़ों को यूज़ करते हैं और हमने इसको हम जानते हैं कि कुदरत की दी हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ करते हैं और क्या इम्पैक्ट है उनको आज हम थोड़ा सा और आगे चल के जाएंगे। हमने कल डिफाइन किया था नेचुरल रिसोर्सेज को, फिर हमने बात की थी हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर। इनको हमने डिस्कस कर लिया था नेचुरल रिसोर्सेज। फिर देन कम्स द नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। तो हमने इसको डिस्कस किया कि हम एटमॉस्फेयर हमारा इज ए ब्लैंकेट, इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस विच सराउंड्स आवर अर्थ। इट एक्सटेंड अप टू 35 to 65 किलोमीटर। इसका जब से हम अलग से पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर को तो उस समय हम इसकी पूरी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ से कहाँ तक माना जाता सर। दस जो हमारी ज़मीन जो है, हमारी ज़मीन के सराउंड में जो गैसेस हैं चारों तरफ, हमारी अर्थ जो है इट इज़ इनक्लोज्ड विद द गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये जो है इसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है, एटमॉस्फेयर बोला जाएगा। देन कम्स हाइड्रोस्फीयर, ज़मीन का वो हिस्सा जो पानी से घिरे हुए हैं, मतलब ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा जो है 75% जो है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर। देन कम्स लिथोस्फीयर, ये ज़मीन जो रॉक और सॉइल की बनी हुई है, दिस इज लिथोस्फीयर। तो अब हम अगर दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करना चाहिए, सपोज ये हमारा पहाड़ है, ये हमारा ओशन है, ये हमारा हाइड्रोस्फीयर है, ये हमारा लिथोस्फीयर है और ये हमारा एटमॉस्फियर है। ये तीनों मिला के हमारा बायोस्फीयर बनाते हैं, जैसे हमारा हाइड्रोस्फीयर है, जमीन का वो हिस्सा जो पानी से घिरा हुआ है। द एटमॉस्फेयर which surrounds, which is just like a blanket around the earth, which surrounds the earth, this is called as atmosphere. And the outer crust of the earth which is not surrounded, which is not covered with water, that is called as lithosphere. Rocks and soil, the area of the earth crust which is exposed and which is not covered with water, and that is made of soil and or rocks, that is called as lithosphere. And all these when function together means all these are essential for all the living organisms. जहाँ तक हम बात करें एटमॉस्फेयर और हम अपनी relation of human beings, because we are the living organism and what we need, we perform different activities. Similarly, all those living organisms which have life, they can all perform the similar activities as we perform. What we need, what they need, जो हमें चाहे वो उनको चाहे। All living organism
require continuous supply of food material. Food material to get energy, and that energy is used for doing work. Energy is ability to do work. From where we get energy? We take continuous food supply. हम फूड चाहे और फूड जो है फूड से एनर्जी हासिल होती है and we can perform different activities. Now we can say that these spheres means hydrosphere, lithosphere and atmosphere. These are the parts of a biosphere. Now what is biosphere? Bio means life and sphere means जगह, वो जगह। अब हम इसको थोड़ा सा आगे और डिटेल में इसको पढ़ते हैं कि हमारा जो हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर ये भी इसका बायोस्फीयर का वो हिस्सा है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। इट इज अ लाइफ सपोर्टिंग एंड लाइफ इज सपोर्टेड बाय द हाइड्रोस्फीयर। जहाँ तक हम बात करेंगे on the basis of different characters of living organism, whether those organisms are plant or they are these animals, because in the whole universe the living organisms are classified into two groups, that is plants and next हो गया animal. We have discussed that there is another world that is called as microbial world or organisms. Along with plants and animals, first the visible living organisms, which are plants and animals, they are classified. All these living organisms are classified first into two categories. There is another category that is microbial world or microorganisms which are not seen, which are invisible. We need some optical instrument to observe these, to study these things. तो हाइड्रोस्फीयर जो है हम बात करेंगे whether they are plant or animals, all those which live in water, which can use this hydrosphere as their habitat. वो ऐसे सारे plants हों या animals हों which can live in hydrosphere, those are known as aquatic organisms. ये it is necessary for, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या जहाँ तक स्पीयर्स की बात आई, हाइड्रोस्फीयर की बात आई, अब ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे हैं, चाहे वो एनिमल हैं या प्लांट हैं, जो इसको यूज करते हैं अपना हैबिटेट और जो पानी में रहते हैं। सपोज वी कैन टॉक ऑफ फिशेस एंड अदर एम्फीबियंस विच लिव बोथ इन प्लांट एज वेल एज ऑन लैंड। तो दोज कैन नोन एज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पानी के प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, all those organisms which use hydrosphere for their life activities. जैसे हम बात करेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी को, हाइड्रोस्फीयर जो पानी को यूज करते हैं, उनका हैबिटेट पानी है, दे कैन परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज इन वाटर, इवन दे कैन रिप्रोड्यूस देयर ओवन ऑफस्प्रिंग्स इन हाइड्रोस्फीयर। ऐसी तमाम चीज़ें जो आप पानी में अपनी सारी एक्टिविटीज़ को करते हैं, whether they are plant or animal, those all are known as aquatic organisms. चूंकि उनका घर है, सारी एक्टिविटीज़ वो पानी में करते हैं। अगर पानी से उनको बाहर निकाला जाए, उनको पुल आउट किया जाए पानी से, तो दे कैन डाई। वी कैन टेक फिश एज एन एग्जाम्पल। आप मछली को पानी से बाहर निकालिए तो क्या होगा, आपका जो वीट, जो राइस प्लांट है, पैडी प्लांट है, उसको आप
पानी मत दीजिए तो क्या होगा, मतलब दीज plants which can grow and produces in water, if we can draw that plant out of the water, that cannot grow. वो तब तक ग्रो नहीं करेंगे जब तक हम उसको पानी फुली नहीं दें। तो इसलिए वो सारे जो हैं उनका स्पीयर जो है वो हाइड्रोस्फीयर है, और ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी एक्टिविटीज पानी के अंदर करते हैं, सारा कुछ पानी में करते हैं, तो वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। देन कम्स जो है लिथोस्फीयर की बात हमने की, तो लिथोस्फीयर पे रहने वाले उनको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स इन विच वी आर इंक्लूडेड। ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म वेदर दे आर प्लांट ऑर्गेनिज्म और एनिमल, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, all those organisms which can perform their activities on lithosphere, that means ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो अपनी सारी एक्टिविटीज जमीन के ऊपर करते हैं, और उनको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, बिकॉज वो सारी अपनी लाइफ एक्टिविटीज जो है वो इसमें करते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच द ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म their life activities on land। ऐसे सारे, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो अपनी एक्टिविटीज लैंड पे करते हैं, दोज आर नोन एज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। एंड देन कम्स जो एटमॉस्फेयर को यूज करते हैं, एटमॉस्फेयर को अपना हैबिटेट बनाते हैं, दोज आर नोन एज आर्बोरियल और एरियल ऑर्गेनिज्म, और दोज which can perform their life activities in atmosphere। ऐसे सारे बर्ड्स जो सारी अपनी एक्टिविटीज जो है खला में बनाते हैं, इवन दे कैन बिल्ड देयर नेस्ट इन दी एटमॉस्फेयर में, कहीं दरख्त है कहीं क्या है तो अपना नेस्ट भी बिल्ड वहाँ पे करते हैं। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म उनको एरियल और आर्बोरियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ मछली को सिर्फ पानी में ही काम पूरा चलता नहीं है। हमको सिर्फ लाइफ पे, हम चूँकि हम जमीन पे रहने वाले हैं, वी आर द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, बट वी नीड एटमॉस्फेयर, वी नीड what is in the atmosphere. It means atmosphere which is a mixture of different gases. We can breathe in the atmosphere. It means we take the gases from the mixture of the gases. It means we take from the atmosphere what we take. We need oxygen for breathing purposes. From where we get oxygen? Unless and until there is no atmosphere, we cannot live. It is why this earth is a unique planet on the earth. जमीन तो और प्लैनेट्स पे भी है, लेकिन वहाँ पे दोज कंडीशन, वाटर इज नॉट देयर, गैसेस आर नॉट देयर, एंड सूटेबल टेम्परेचर इज नॉट देयर। इट इज वाई हम जो हैं ऑर्गेनिज्म, हम टेरेस्ट्रियल हैं, बट वी नीड हाइड्रोस्फीयर। हम जो हाइड्रोस्फीयर फिशेस हैं उनको खुराक चाहिए, वो छोटी मछलियाँ, वो भी बड़ी मछलियाँ, हम फूड चेन और फूड वेब को पढ़ेंगे आगे, अभी उसकी बात नहीं है। लेकिन दे नीड, उनको भी हवा चाहिए, क्योंकि जब तक पानी का सर्कुलेशन है, ये पानी का सर्कुलेशन नहीं होता, पानी की डिफरेंट स्टेट्स जो है, दैट इज लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस, अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये मुमकिन नहीं था। इट मीन्स these sphere are necessary for each, either that is terrestrial, that is aquatic or arboreal organisms. All these
animals which are classified into different groups on the basis of their life activities, all incomplete without another sphere. Suppose we live on land, we are the terrestrial organisms, but we depend on hydrosphere, we depend on atmosphere. Those which are living, those which are aquatic organisms, they need earth, they stay on the earth, they they build their nest on the earth crust. मीन्स ऐसे भी हैं जो फिशेस जो हैं, कुछ फिशेस जो हैं आके जहाँ पे पानी स्टैग्नेंट खड़ा है वहाँ जाके अपने अंडों को करते हैं, लेकिन अभी हम उतना नहीं जाएंगे. सिंपली वी कैन से दैट देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टेरेस्ट्रियल, बिटवीन द हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड lithosphere, because all three comprises a biosphere, and biosphere is a sphere where there is a existence of life. तो ये आज का चैप्टर था, आज के लिए ये बहुत ज़्यादा है. हम नेक्स्ट इसको आगे लेके आएंगे कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन पे कैसे दबाव पड़ता है, क्या होता है. तो हम आइंदा उस पर बात करेंगे. जैसे ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है, हमारा लिथोस्फीयर है, हमारा एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर हमारा जो विच इज़ ए फूड मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, कि वो प्योर है, और देयर इज ए पोल्यूशन इन द गैसेस, there is a water pollution, because at present the problems are arisen due to the human activities. Human, which is a selfish one, can perform so many activities for his own sake, but he can polluting the other natural resources. तो हम देख लेंगे कि हम इनको कैसे बचा के रखेंगे, हम कैसे इनको बचा के रखेंगे, तो वो नेक्स्ट में होगा. तो आज जो है ये इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे. थैंक्स.